So let's start with new topic today. Our main chapter today will be the market selection. But before that, we have two brief topics regarding the previous chapter of menu planning. The first one will be the defining the situation under which we plan the menu or the context we plan the menu. हमने इतना सारा कुछ पढ़ लिया, हम उसको थोड़ा सा briefly अब define करेंगे कि हम menu plan तो करते हैं, बहुत सारे factors हमने पढ़े हैं, जैसे कि type of menu we plan, type of the menu affect the menu planning, the people we serve affect the menu planning, the resources affect the menu planning. But now in this slides we will be actually defining the whole scenario in one place. कि पूरा का पूरा सिनेरियो हम एक ही जगह पे अब डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट वी मीन बाय मेन्यू प्लानिंग, किस तरह की सिचुएशंस को हमें जानना पड़ता है बिफोर स्टार्टिंग विद दी मेन्यू प्लानिंग। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो, इफेक्टिव हो, तो जो रियल सिचुएशन होती है उसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने ये सारा पढ़ लिया है, मैं सिर्फ इसको एक ब्रीफली डिफाइन कर रही हूँ पॉइंट वाइज कि ये बेसिक कंटेक्स्ट जो हमने पढ़े हैं, सिचुएशंस हमने पढ़ी हैं। सो सबसे पहले हमने कहा था कि मेन्यू प्लानिंग इज अफेक्टेड बाय टाइप्स ऑफ मेन्यू, बट द टाइप्स ऑफ मेन्यू इज आल्सो अफेक्टेड बाय द ऑडियंस, एक्चुअली किसको हम सर्व करने जा रहे हैं। So it is very important to determine that whom you are actually serving. So first one is the audience. How many peoples are to be served? Yes, it is very important that we should know the number of peoples to be served. Can anybody, this will be discussion type of the class. So I will asking the questions by names. जी आयला, आयला तस्लीम। एंड जिसका मैं नाम लूंगी कि वो रिस्पॉन्स नहीं करता, सीआर से Yes, रिक्वेस्ट ma'am. है कि उसको एब्सेंट मार्क कर दें। जी आयला, आयला क्या मुझे Yes, ma'am. बताएंगी व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू डिफाइन द नंबर ऑफ पीपल टू बी सर्व्ड? Ma'am, so that we can plan accordingly how much food we need and to for the further arrangements, Like, how much food we need to prepare different dishes. okay, that means you're talking about only the amount of food. G. Saleh Ashraf, can you tell me anything else despite of the only food? Ayla, you can mute yourself. Saleh Ashraf. And those who are leaving the meeting, please उनको भी mark कर दें कि वो absent हैं. Nimra Shahzad has left the meeting. No, don't know why the students are leaving the meeting, but I'll mark them absent on my own now, right now. Ji Zainab Nadeem. Saleh Yes, ma'am. Ashraf is absent. Zainab. Yes, ma'am. Now tell Yes, me ma'am. why we should know about the number of the people to be served. एक तो उन्होंने बताया कि because we need to know about the amount of the food to be prepared. उसके अलावा कुछ और मुझे बता सकती हैं? मैम और उसके लिहाज से हम प्लेट्स, ग्लासेस, क्रॉकरी वगैरह जितनी हमें चाहिए वो कर सकते हैं प्लान, Very good. और कि फिर हमें देख जो सकते हैं हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। yes, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो शायद हमें उसके लिए अरेंजमेंट्स करनी पड़ती। वेरी गुड, दैट इज इट मींस यस दैट मैम। नॉट द अमाउंट ऑफ फूड, we must also know about the dishes for the serving purpose also. Good. So moving on to the next one. What are their approximate ages? Mamuna Tariq, can you tell me what are their approximate ages? Why will you need to know about the approximate ages of the students? Oh, sorry, of the audience. मैम क्योंकि डिफरेंट एजेस के लोग हैं, उनको डिफरेंट टाइप के फूड रिक्वायर्ड होंगे। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको उनकी डाइट और होगी, और जो ज़्यादा एज के हैं उनकी और, तो इस वजह से उसके अकॉर्डिंग हम फूड प्रिपेयर कर सकेंगे। So that we could have at least one dish to be served at different ages. Okay. Okay. Then we have cultures as well as the special needs.
Who will tell me? Shiraz. Why we need to know about the culture, Shiraz Mustafa? Yes, ma'am. Why we need to know about the culture of the audience? Ma'am, किस लिहाज से? Ji Mohammad Hamza Ali. Can you tell me why it is important to know about the culture of the audience while planning the menu? Shiza Khalid. Who is a CR? Yes, ma'am. Evening. Muhammad Bilal. And in the morning? Yes, जी, ma'am. Ma'am. शिराज आप है मॉर्निंग के CR? Yes, ma'am. जो मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा बच्चे प्लीज उनको मार्क करें एब्सेंट। ठीक है? Okay, ma'am. अब इस चीज को नोट डाउन किया कि जो मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं बीच में, चाहे वो आधे घंटे बाद जाए, उनको प्लीज एब्सेंट मार्क कर दिया करें। स्पेसिफिकली उनका नाम लेकर उनका एब्सेंट मार्क करें। Hope we have on campus classes soon. I'm waiting for all of you to be on campus now. Okay, ma'am. Okay, so we need to know about the culture and the special needs because when we talk about the cultures, we must know about the sitting arrangement they actually like in their culture and the specific type of foods that they are actually used to in their culture. So cultural foods को बनाना भी एक हमारी responsibility होती है मेन्यू में। Plus special needs means that अगर कोई diabetic है, hypertensives हैं, उसमें कोई और disease उनको है जिनकी special needs हो सकती हैं, तो उनको भी हम थोड़ा सा identify करते हैं ताकि हम उसके हिसाब से अपने foods को plan कर सकें। Next we have second one is kitchen and dining facilities. Already हमने उसको number of people serve में भी explain किया कि kitchen equipments limitations exist. तो कौन कौन से equipments की limitations हैं? For example आपने juice बनाना है, घर में juicer खराब है, तो that is equipment limitation here. You want to have a bake here, you want to make cupcakes or any other kinds of the baking items, but you do not have baking facility, baking oven आपके पास नहीं, of course microwave है. So such kind of equipment limitation अगर exist करती हैं तो obviously हम अपने मेन्यू में ऐसी चीजें ही नहीं डालेंगे जिसको बनाने के लिए हमारे पास equipments ना हो। What serving limitations does exist? यानी कि serving sizes, serving spoons, as well as the other crockery, flatware, dinnerwares, कुछ भी अगर glasses हैं, glassware जो हम कहते हैं, अगर वो missing है हमारे पास इतने amounts में नहीं है तो हम पहले से उसकी arrangement करके रखें। For example, if we have a limit of 8 आपके पास आपके आजकल serving का set आ रहा है, dinner set जो आ रहे हैं। But हमारे पास अगर लोग जो है वो 20 हैं, 25 हैं, तो obviously we have to make arrangement for them. अगर arrangement भी इससे होना चाहिए कि सबके एक जैसे बर्तन, तो obviously we have to go for the catering services, तो वहां से हम लोग फिर अपनी servings लेके आते हैं। Next is the resources. How much time is available for food preparation, serving and cleanup? Obviously, for example, अगर आपने emergency में arrangements की हैं और आपने आज for example सुबह ही plan किया, रात को आपने सब कुछ तैयार करना है, short duration है, तो जो भी आपने menu plan की, जो भी food prepare करना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि वो इतने time में prepare भी हो जाए। You have enough time for this. You have enough individuals to help you in that. Serving के लिए serving कौन करेगा? Cooking को कौन करेगा? Kitchen की responsibility किसकी होगी? Cleanup किसकी होगी? क्या इतने लोग आपके पास available हैं? Time कितना available है? So all these things are very important. Budget. जो भी आपने plan किया कि आपके पास इतना budget है, ठीक है? तो कितने लोग हैं आपके पास, कितना वक्त है, कितना बजट है फूड को प्रिपेयर करने में, और आखिर में जो है वो क्लीन अप किचन की और सर्विंग कौन करेगा, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एवरीबॉडी इज असाइंड फॉर पर्टिकुलर वर्क ताकि उस वक्त मिसहैप्स ना हो कि ओह मैंने सर्विंग करी, तुम कहाँ चली गई हो, ये ऑल दीज प्रॉब्लम्स शुड नॉट अराइज एट दैट टाइम। सो ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी प्लान्ड, हैज टू बी थॉट
before starting the actual menu planning. डिफाइनिंग मेन्यू प्लान सब कुछ बनाने के बाद, सोचने के बाद, एवरीथिंग हमने परचेज की, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रिफाइनिंग मेन्यू प्लान का मतलब है आखिर हम एक लास्ट चेक करते हैं मेन्यू प्लान को अपने, ठीक है, कि हम देखते हैं कि अभी कोई अगर कुछ चीज रह जाती है, एनीथिंग हम विजुलाइज कर रहे हैं कि हमने ये प्लान किया, अगर अब रियल सिचुएशन में जब आएंगे तो ऐसा होगा, तो व्हाट कुड बी दी आउट शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस मेन्यू प्लान। तो पहले से एक विजुलाइजेशन करके, प्री विजुलाइजेशन कि एक्चुअल होने से पहले हम थोड़ा सा सोचते हैं उसके बारे में, और फिर देखते हैं कि कोई कमी तो नहीं रह गई, तो उसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं एट दी एंड ऑल्सो। सबसे पहले चेक ईच डेज प्लान्स अगेंस्ट द रिकमेंडेशंस इन माय पिरामिड, कि हमने माय पिरामिड को फोकस करते हुए एक मेन्यू प्लान बनाया स्पेसिफिकली। ये जो फर्स्ट पॉइंट है कि हम एक दिन का मेन्यू प्लान जो बना रहे हैं उसको माय पिरामिड के अगेंस्ट चेक करते हैं। दैट इज फॉर दी स्पेसिफिकली फॉर द स्कूल लंच प्रोग्राम जो बच्चों के लिए बनाते हैं या हॉस्टल्स में जो होते हैं, उनके लिए हम लोग ये फर्स्ट पॉइंट गो थ्रू करते हैं। एंड डिटर्मिन दी सर्विंग्स नीड टू बी एडेड और डिलीटेड, कि अगर आप लगता है कि खाना हम लोग ज्यादा बना रहे हैं, इतने लोग हैं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है खाना, तो आपको लगता है कि इसे कम कर देना चाहिए, तो वो आप पहले से यहाँ पे कम कर दें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कम है, हमें ज्यादा करना है, तो उसके लिए सर्विंग्स ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक रेसिपीज, प्रिपरेशंस और सर्विंग्स किस तरह करनी है, सर्विंग बाउल कौन से यूज करने, विजुलाइज द मेन कोर्स कैसा होना चाहिए, उसकी गार्निशेस कैसी होनी चाहिए, उसके कौन सा अकम्पैनिमेंट्स कहते हैं जो साथ में हम देते हैं। अकम्पैनिमेंट्स हमेशा कहते हैं जो साथ में दिए जाते हैं, जो साथ में रखे जाते हैं, ठीक है, जैसे कि सैलेड्स, जैसे कि रोटी, इनको हम अकम्पैनिमेंट्स कहते हैं। मेक सम नेसेसरी एडजस्टमेंट दैट नीड टू बी मेड, अगर लगता है कि इन सबके बाद कोई एडजस्टमेंट्स की जरूरत है तो उनको पहले से हम लोग कर लेते हैं बिफोर द अराइवल ऑफ द गेस्ट। Today we move on to chapter 4, that is the managing marketing and the selection of the marketing. The market की selection कैसे करनी, because we need to purchase food, so in order to purchase food we need to select market. So on what basis actually we have to select market, ठीक है। You all know that whatever the situation might be, अब अगर हम आजकल की बात करें, this is the situation of corona, we all know that, but still कोरोना हो और या कोई और प्रॉब्लम्स हो, स्टिल द फूड इज वन थिंग दैट हैज टू बी परचेज्ड। डेली एक्सपेंसेस इसके ऊपर हमारे जरूर लगते हैं, ऑन गोइंग सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस हम लोग फूड परचेज पे लगाते हैं, हम भूखे नहीं रह सकते, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग दैट हैज टू बी परचेज्ड ऑन रेगुलर बेसिस regardless of whatever the situation we have in the market. So smart shopping is very important, which can help to keep the food cost reasonable. हम यहाँ बात करते हैं स्मार्ट शॉपिंग की। स्मार्ट शॉपिंग को लेके आपके माइंड में क्या चीजें आती हैं? व्हाट डू मीन बाय स्मार्ट शॉपिंग? मैम जो चीज़ें हमें चाहिए वही खरीदें, एक्स्ट्रा नहीं बाय करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो चीजें चाहिए वही खरीदें, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा जो है वो बाय नहीं करें। ओके, एनीथिंग एल्स? मैम और क्वांटिटी भी मतलब ये हमें पहले से पता होना चाहिए, इतना लेना है, एक्स्ट्रा भी ना लें। यानी कि हम अगर सिंपल बात करें कि शॉपिंग लिस्ट बना के जाएं, जो चीजें जरूरत है, जितनी जरूरत है, तो शॉपिंग लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मार्ट शॉपिंग, हम ये अगर कहें तो, ठीक है। यस मैम। और कुछ माइंड में आता है? कभी मार्केट में गए हो, कभी आपने स्मार्ट शॉपिंग की हो? सोचें जरा थोड़ा सा। मैम कहते हैं कि अगर एक ही चीज एक जगह पे महंगी मिल रही है और एक जगह पे सस्ती मिल रही है तो सस्ती वाली को प्रेफर करें। हाँ, और कई दफा ऐसा भी होता है, आप लोगों ने देखा, प्रमोशंस लगी होती हैं। देखे कभी प्रमोशंस के बारे में? यस मैम। सेल आर्टिकल्स होते हैं, प्रमोशंस होती हैं, तो अगर आपको रिक्वायर्ड चीज उस सेल आर्टिकल्स में या प्रमोशंस में मिल जाती है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बाय दोज थिंग्स, ठीक है। अगर जैसे आजकल की स्मार्ट शॉपिंग के बारे में बात करें, कोरोना है, हम बाहर नहीं जा सकते, फॉर एग्जाम्पल वी नीड सर्टेन मेडिसिन, सर्टेन फूड टू बी परचेज, तो हम लोग ऑनलाइन भी उसको जो है वो मंगवा सकते हैं, और
ऑनलाइन भी सेम अगर रेट पड़ता है तो ऑब्वियसली तभी हम उसे परचेज करते हैं, ठीक है। सो while shopping always begins with the selection of market. स्मार्ट शॉपिंग का पहला स्टेप हमारे पास होता है कि आप एक तो शॉपिंग लिस्ट बनाएं, दूसरा स्टेप है कि आप मार्केट सिलेक्शन करें। ऐसी मार्केट सिलेक्शन करें जहां पे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको एक जगह पे मिलते हैं, ठीक है। बिकॉज फूड बाइंग डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने कहाँ से परचेज करना है, बहुत जरूरी। बिकॉज सिर्फ फूड परचेज नहीं करना, फूड परचेज में से बहुत सारी चीजें हमारी इफेक्ट होती है, जैसे कि हमारे पैसा लगता है, मनी। हम अगर कॉस्टली जगह पे चले जाएं, जैसे कि मेट्रो भी है, हाइपर स्टार भी है, बाकी हमारे पास भी जनरल स्टोर है, यूरो स्टोर है फॉर एग्जाम्पल, आजकल बहुत कॉमन हो गया यूरो स्टोर। तो इनमें से हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन सी जगह का प्राइस कम है। तो प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट एवरीबडी हैज टू कंपेयर द मार्केट्स विद। तो फाइनेंसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फूड परचेज डिसीजन हमारे फाइनेंस को इफेक्ट करता है, हमारे टाइम को, दूर है नजदीक है, तुम्हारे टाइम को इफेक्ट कर रहा होता है, रश कितना ज्यादा है वहां पे, एनर्जी, हमारी अपनी एनर्जी कितनी यूज हो रही है, प्लस फ्यूल कितना यूज हो रहा है, फ्यूल फॉर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर मार्केट। फूड ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी, प्राइस मैटर्स बट क्वालिटी ऑफ द फूड आल्सो मैटर्स, ठीक है। एंड हेल्थ, कि कहाँ पे हेल्थ की बात करते हैं तो जैसे कि उस स्टोर का टेम्परेचर या फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है। अगर हम कहीं जा रहे हैं जगह पे, चीज तो सस्ती मिल जाती है लेकिन वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, स्टोर का टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं किया गया, ऑब्वियसली हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है, खासकर जो गर्मी के दिन होते हैं। So overall things has to be kept in our mind before selection of the market. So let's see what are the specific points when we select the market we have to keep in our mind. So the factors affecting the market selections include location, cleanliness, physical features. We will be discussing each point in detail: location, cleanliness, physical features, services and personnel, overall food quality, fresh produce, meat and dairy, delicatessen and bakery, breadth of inventory and food prices. इसमें काफी सारे ऐसे नाम होंगे जैसे कि delicatessen क्या होता है, breadth of inventory क्या होती है, we're studying each of the point in detail. So let's start with the first one. These are the 10 points on the basis of which we select our market. Please इन points को आप देख लें because you have to evaluate a market also. जो भी market में आप लोग जाते हैं आपने उसको इन 10 points के ऊपर evaluation करनी जो आपका practical होगा. I'll be giving you a work for your next week as a practical because next week आपका holiday है, तो obviously हम लोग makeup करेंगे इनकी. The first point is the location. सबसे important चीज होती है location में कि it should be close to your home so that it reduces the driving time and it is also good for perishable items, especially in some summers. सबसे पहली बात है close to home. जितना घर के करीब होगी उतना आपकी ड्राइविंग टाइम यानी कि आपके टाइम को सेव करेगी, आपके फ्यूल को सेव करती है, ठीक है। एंड अच्छा होता है फॉर एग्जांपल हम फ्रोजन आइटम्स लेकर आ रहे हैं, कोई पेरिशेबल आइटम्स और लेकर आ रहे हैं, तो जगह जितनी नजदीक होगी हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे, स्पेसिफिकली इन समर, तो उसमें जो डैमेजेस के चांसेस हैं, जो चीज को खराब होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं अगर हम घर के करीब जो है वो की मार्केट हमें मिल जाती है। दूसरा क्या है कि ठीक है घर के करीब हो, फॉर एग्जाम्पल अगर वो घर के करीब है लेकिन उधर पार्किंग स्पेसेस नहीं है, देन अगर इनफ पार्किंग स्पेस नहीं है, सेफ्टी नहीं है पार्किंग स्पेस की, देन कि आप ऐसी जगह पे जाएंगे, मार्केट जैसी जगह पे शॉपिंग करेंगे, अगर आपने कंप्लीट ग्रोसरी करनी है मंथ की, क्योंकि आप ऐसी जगह पे जाना पसंद करेंगे जहाँ पे आपकी सेफ्टी नहीं है गाड़ियों की, जहाँ पे पार्किंग में कोई सिक्योरिटी नहीं है, इनफ पार्किंग स्पेसेस नहीं है, रश है बहुत ज्यादा, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? नो मैम। देखिए आपको देखिए यहाँ पे अब चीजें सारी शायद क्लोज टू होम है, आपका टाइम बचा रही है आपका, लेकिन जब आप जाते हैं पार्किंग स्पेस से सबसे ज्यादा टाइम जब आप पार्किंग ले लेती है कि आपको पार्किंग की स्पेस ढूंढने में वक्त लग जाता, तो जो टाइम आपने ड्राइविंग का बचाया था, जो टाइम आपने अपनी शायद फ्यूल का बचाया था, पैसे जो बचाए थे, तो वो टाइम आपका पार्किंग में लग गया और वो जो एनर्जी फ्यूल में बचाई थी वो एनर्जी आप लोगों की यूज होगी, ठीक है। सो उस चीज का फिर फायदा नहीं होता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है लोकेशन करीब होनी चाहिए,
जितनी करीब होगी उतनी बेटर होगी, लेकिन साथ में एक सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया है कि हमें पार्किंग स्पेस को देनी, इट शुड नॉट बी फ्रस्ट्रेटिंग, ठीक है। A level parking lot is helpful in avoiding damage from shopping cart. अब level parking space की बात करें, लेवल इसलिए बिकॉज शॉपिंग कार्ट जब आप लेकर आते हैं, इनकेस हाथ से छूट जाती है, लेवल नहीं होती है, इंक्लाइंड होता है हमारे पास जो पार्किंग एरिया, जो आप आते हैं अपनी कार्ड्स को लेके, समटाइम्स कहते हैं अगर हाथ से छूट जाती है, किसी से कोई एक्सीडेंटली किसी से छूट जाती है, तो कार्ड्स को डैमेज हो सकता है, शॉपिंग कार्ट्स को भी डैमेज हो सकता है, तो और अपना हमारा सामान जो है वो भी गिर सकता है। तो लेवल पार्किंग स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे इजीली हम कार भी पार्किंग कर सकें और अपना सामान जो है बाद में जो है थ्रू कार्ट्स जो है शॉपिंग कार्ट्स हम वापस अपनी जगह गाड़ी तक जो है वो लेकर आ सकें। सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द लोकेशन। सिक्योरिटी एंड वेल लाइटेड पार्किंग लॉट फॉर सेफ्टी ऑफ, अब बहुत सारी पार्किंग स्पेस भी है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, गार्ड्स नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है वहां पे, कोई कैमरास इंस्टॉल्ड नहीं है आजकल, कोई भी आके गाड़ी उठा के ले जाए। वेल लाइटनिंग स्पेस नहीं है, आप जा रहे हैं अपने सामान रख रहे हैं निकल रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, लाइटिंग ही नहीं है प्रॉपर, आपका चीज कहाँ रखे हैं कुछ पता नहीं चल रहा। सो सच काइंड ऑफ पार्किंग स्पेस अगर नहीं होती और सेफ्टी नहीं होती, तब भी शॉपर्स के लिए बहुत ही कम्बर्सम और फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हो जाती है। So along with the location, we also need the parking spaces. We also need security. ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं लोकेशन के साथ बताऊंगी, आपको ये भी माइंड में होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल द वन दैट इज क्लोज टू योर हाउस हैज इनफ पार्किंग स्पेस, घर के करीब भी है, आपके पास पार्किंग स्पेस भी बहुत अच्छी है, लेट्स से, ठीक है। लेकिन आपका घर ऐसे एरिया में है फॉर एग्जांपल, या वो जो मार्केट ऐसे एरिया में वो है जहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसको रेंट भी देना पड़ रहा है, एक ऐसी जगह पे है मार्केट स्पेस जहाँ पे बहुत ही हाई फाई सोसाइटी के लोग रहते हैं और उसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं, रेंट बहुत ज्यादा है फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली उसने अपना सारा का सारा जो रेंट है, जो उसकी जो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करे, वो अपनी प्रोडक्ट्स की वैल्यूज इंक्रीज करता है उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या होगा कि हम ऐसी जगह ढूंढें जो वो भी घर के इतनी दूर ना हो, थोड़ी सी शायद दूर हो जाए इससे, लेकिन फिर वहां पे एक तो पार्किंग स्पेस भी अच्छी हो, प्लस जो प्राइसेस हैं फूड के तो वो भी अच्छे हो। तो ऑल दीज पॉइंट्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग अ मार्केट। पहले हमने लोकेशन की बात की, जितनी ज्यादा आप हाईफाई सोसाइटीज में जाएंगे, लोकेशन जितनी ज्यादा अच्छी होगी ऑब्वियसली उतना ही प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो एवरीथिंग हैज टू बी केप्ट इन माइंड। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि जो एक्सपेंसिव तो होते हैं लेकिन हमारा वक्त बचाते हैं, जैसे कि होम डिलीवरी है, पर्सनल शॉपर्स हैं, हम फोन करते हैं, लिस्ट भेज देते हैं, वो घर सारा सामान भेज देते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इंटरनेट है, लेकिन ऐसी जो फैसिलिटीज हैं होम डिलीवरी की, पर्सनल शॉपर्स की, इंटरनेट की, ये उन लोगों के लिए इनकी फिजिकल लिमिटेशंस होती हैं जो खुद जा नहीं सकते। जैसे कोरोना की सिचुएशन में अगर कंप्लीट लॉकडाउन हो जाए तो दिस इज अ गुड ऑप्शन, या जिनकी फिजिकल जो डिसेबल्ड होते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन होती है कि वो बाहर जाके तो वो ऑनलाइन सर्विसेज को अवेल कर सकें, इंटरनेट को अवेल कर सकें, होम डिलीवरी को अवेल करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीनिनेस। सो क्या आप ऐसी मार्केट में जाना पसंद करेंगे जहां पे जगह जगह पे पानी गिरा हो, फ्रीजर्स लीक कर रहे हो, फ्रीजर से स्मेल आ रही हो? Who would like to go into such market? बहुत करीब है, पार्किंग स्पेस, पार्किंग एरिया भी अच्छा है, but when you enter the market you have a foul smell there. You find litters here and there. जगह जगह पे कागज फेंके हुए हैं, गंद पड़ा हुआ है। Would you like to go to that market? No, ma'am. No, ma'am. No. So it is very important to have a pleasant environment for shopping also. You know that some individuals enjoy shopping, like me. I enjoy shopping. चाहे वो grocery करनी हो, चाहे वो other kind of shopping होती है. This is one thing जो मेरे mind को divert करता है. That refreshes me, shopping. ठीक है? So हम चाहते हैं कि pleasant environment में shopping करें. Safety, food quality, all these need to be maintained. Important for optimizing food quality and safety, a pleasant environment for shopping. We need a clean environment there. जहाँ पे हमें लगे कि फूड क्वालिटी मेंटेन की, हमारी अपनी सेफ्टी, हमारी अपनी हेल्थ की सेफ्टी है। वी नीड क्लीन फ्लोर्स, फ्री ऑफ लिटर्स, स्पिल्स,
which indicates the quality. Obviously बात है कि जहाँ से refrigerator से इतना पानी leak out कर रहा है, smell आ रही है, तो what kind of food they will be keeping? Expired होगा या properly frozen नहीं होगा, ठीक है? Then refrigerated and frozen items need to maintain well. जो उनका temperature है frozen items का, तो वो properly refrigerate होने चाहिए, properly freeze होने चाहिए जब आप उनको pick करें तो, ठीक है? This is about the cleanliness. It is very important कि टाइम टू टाइम वो क्लीननेस मेंटेन करें और फ्रेग्रेंसेस होनी चाहिए, यानी कि फिनाइल से साफ किया हुआ, यू नीड सच काइंड, और जो उनके जो शेल्फ्स के ऊपर जो फूड पड़ा है वो प्रॉपर्ली अरेंज हो। तो इसलिए आप देखते होंगे जब भी हम ऐसी बड़ी मार्केट्स में जाते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव केयरफॉर, वी हैव मेट्रो, वी हैव यूरो स्टोर्स, तो उनकी जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो टाइम टू टाइम जो, अगर हम लोग उनको इधर उधर रख भी देते हैं तो जो उनके सेल्समैन होते हैं तो उनको प्रॉपर्ली अरेंज करके रखे होते हैं, कंटिन्यूअसली उनकी अरेंजमेंट्स ठीक कर रहे होते हैं। और उनमें डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, कौन क्लीननेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन चेकआउट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन जो हमारे पास है बिलिंग के लिए, या जो कौन है हमारे पास हेल्प आउट करने के लिए अलग हमारे पास पर्सनल होते हैं। जगह जगह पे चीज़ों को ठीक करना वो अलग लोगों का काम होता है। सो ऑल दीज इंडिविजुअल्स आर नोन एज पर्सनल सर्विसेज एंड पर्सनल ये प्रोवाइड करते हैं, इनको हम पर्सनल कहते हैं, दोज आर हेल्पिंग वन, ठीक है। देन वी हैव फिजिकल फीचर्स। लाइटनिंग सिर्फ हमें पार्किंग स्पेस में नहीं चाहिए, वी नीड अ गुड लाइटनिंग इन दी स्टोर्स आल्सो, इन दी मार्केट आल्सो। व्हाई? जब तक हमें गुड लाइटनिंग नहीं मिलेगी, हमें पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं आती हैं, हम लेबल्स को प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा सफाई भी हो जाए और डल लाइटनिंग हो, ऑब्वियसली आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, अगेन यू डू नॉट गेट अ गुड एनवायरनमेंट टू शॉप इन, ठीक है। सो जितनी ज़्यादा ब्राइट लाइटनिंग होगी, ऑब्वियसली उनका जो फर्श है अगर वो साफ होगा तो और चमकेगा, उतनी ज़्यादा क्लीनलीनेस आपको ज़्यादा शो होती है। तो फिजिकल फीचर्स सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले क्लीनलीनेस एंड गुड लाइटनिंग। सेकंड वी हैव टेम्परेचर ऑफ द स्टोर। जितने भी बड़े हमारे पास मार्केट्स होते हैं उनमें टेम्परेचर वेल मेंटेन्ड होता है, थर्मल्स उन्होंने अरेंज किए होते हैं जिसकी वजह से वो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। तो जिस भी मार्केट में टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा देर तक खासकर रश में वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। हो सकता है कि इतना तंग हो जाते हैं समटाइम्स टेम्परेचर की वजह से कि हम आधी चीज़ें लेते हैं और आधी चीज़ें छोड़कर आ जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम आएँगे अब और बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। एंड विड्थ ऑफ द आइल, विड्थ ऑफ द आइल कहते हैं 2 रैक्स के बीच में स्पेस को, ठीक है। 2 रैक्स के बीच में, 2 शेल्फ्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी इसे फेस किया है कि हम लोग एक 2 शेल्फ्स के बीच में जो एरिया होता है हम अपनी चीज़ें खरीदने जा रहे हैं और सामने से कोई और इंडिविजुअल आ रहा है अपनी ट्रॉली को लेके। अगर शेल्फ के बीच में स्पेस कम है तो व्हाट विल हैपन? वन हैज़ टू गो बैक विद द व्हीलिंग कार्ट। ऐसा कभी किसी ने फेस किया है? Yes, ma'am, many times. मेनी टाइम। सो इट इज़ अ कम्बर्सम, आपको पीछे जाना पड़ता है। समटाइम्स आप अगर अट जाते हैं, नहीं मैं नहीं पीछे जाऊँगी, जो बाद में है वो पीछे जाएँ। सो दीज़ काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन यूजुअली अराइज़ अगर विड्थ ऑफ द आइल जो है वो कम होती है तो। दीज़ मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिकॉज़ जो कार्ट्स को फिर मूव करना होता है स्टोर में वो थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाता है। अदरवाइज़ वी हैव टू कीप आवर व्हीलिंग कार्ट्स एट द एंड ऑफ द शेल्फ, जो हमारे पास जो रो है उसके एंड पे रख के तो हम लोग यहाँ से चीज़ें उठा के ले जा रहे होते हैं। तो बोथ द थिंग्स आर कम्बर्सम फॉर अस, so there should be enough space between the 2 shelves. इसको कहते हैं width of the aisle. Width of the aisle means space between 2 shelves और racks जो हमारे पास होते हैं side by side. दूसरा height of the shelves. Height of the shelves, specifically height of the shelves matter करती है जिनका कद कम होता है, जिनकी height कम होती है। अब उन्होंने हाइट शेल्फ्स कितनी ऊपर बनाई होती हैं, आपका हाथ नहीं पहुंचता, या आपके घर में जो बड़े हैं सबसे उनका भी हाथ नहीं पहुंचता, तो इट्स बिट एम्बैरेसिंग सिचुएशन देयर। तो उनको नॉर्मल शेल्फ्स की हाइट रखनी चाहिए जो कि इजीली आप सबको रीच कर सकें उसको हर कोई। तो अदरवाइज वो जब एम्बैरेसिंग सिचुएशन एक दफा सामने आती है तो नेक्स्ट टाइम वो एक सिंपल सा पॉइंट जो है मार्केट सिलेक्शन को इफेक्ट कर जाता है, ठीक है। शॉपिंग कार्ट्स, ऐसा भी होता है हम जाते हैं मार्केट में, हम शॉपिंग कार्ट्स या व्हीलिंग कार्ट्स हम लोग लेते हैं, तो उनके टायर्स खराब होते हैं, वो मूव ही नहीं करती हैं आगे। कभी जगह जगह पे उनकी जगह कोई तार टूटी होती है तो इट कुड डैमेज आवर प्रोडक्ट्स आल्सो। तो शॉपिंग कार्ट शुड बी ऑफ एप्रोप्रिएट साइज एंड वेल मेंटेन। उनको चाहिए कि मार्केट में जो भी जिस मार्केट को हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो उनकी हर वक्त उनकी शॉपिंग कार्ट्स वेल मेंटेन्ड हो,
उनका इतना साइज हो कि हम उसमें अपना इनफ अमाउंट ग्रोसरी का जो है वो ले सकें, ठीक है। सो दीज आर द फिजिकल फीचर्स दैट अफेक्ट द मार्केट सिलेक्शन। सर्विसेज एंड पर्सनल, सर्विसेज का मतलब है कि जो जो सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड करें इन टर्म्स ऑफ एटीएम फैसिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ दी कैशिंग, ये जहाँ पे आप लोग उनको अपना ग्रोसरी को एक्चुअली में एट द एंड जब का बैगिंग किस तरह कर रहे हैं, एट द एंड उनके पास कितने स्टेशन अवेलेबल हैं चेकआउट करने के लिए, कैश को पेमेंट करने के लिए, ठीक है, जो भी आपने खरीदा है। तो ऑल दीज आर सर्विसेज एक्चुअली, एंड पर्सनल आर द इंडिविजुअल्स who are helping you while you are purchasing the or while you are taking the grocery items from the racks, तो उनको हम पर्सनल कहते हैं। सर्विसेज जो फैसिलिटीज वो आपको प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ द एटीएम फैसिलिटीज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द कैश काउंटर्स देयर, तो ये आपके पास सर्विसेज हो जाती हैं। पर्सनल आर द इंडिविजुअल्स जो आपकी हेल्प आउट करते हैं। अब वो पर्सनल कैसे होने चाहिए? दे शुड बी हेल्पफुल, दे शुड बी काइंड एंड कॉर्टियस, और उनको उन शेल्फ की जहां जहां पे फूड डिफरेंट टाइप के पड़े उनकी नॉलेज होनी चाहिए, वेरियस आइटम्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पूछा उनको तो वो किसी और को, तुम इधर आना प्लीज, मुझे नहीं पता, इनसे पूछ के बताता हूँ। तो दिस काइंड ऑफ पर्सनल, इस तरह की सर्विसेज अच्छी नहीं लगती, ठीक है। और किस तरीके से वो आपके जो अपनी ग्रोसरी की उसको हैंडल किस तरह कर रहे हैं, उनकी बैगिंग किस तरह कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्विसेज एंड पर्सनल while selecting a market. Any question up till now? No, ma'am. Anybody? मैम पर्सनल रिपीट कर दें, क्या होता है? पर्सनल बच्चे जो लोग आपकी हेल्प करते हैं, जो वहां पे लोग सेल्समैन जो काम कर रहे होते हैं उनको पर्सनल कहते हैं, ठीक है। अब आप जाएं, आपसे बदतमीजी करें, आपको प्रॉपर्ली चीजें बताएं, मुझे नहीं पता, आपको इस तरीके से बोले, तो हाउ वुड यू फील देयर? नहीं, हाल से अगर आपके पेरेंट्स हों तो वो लोग कंप्लेन कर दें उनकी। तो दे शुड बी कॉर्टियस इनफ, दे शुड बी वेरी पेशेंस उनमें होना चाहिए बहुत ज्यादा, दे शुड बी हेल्पफुल। ये नहीं कि वो आपको अवॉइड करें, आपकी बात ही ना सुने, अपने काम में लगे रहें, एज इफ यू डू डोंट एग्जिस्ट एट ऑल। तो इस तरह की पर्सनल्स नहीं चाहिए हमें, इस तरह के सेल्समैन नहीं होते। सेल्समैन वो होते हैं जो बहुत ही पेशेंस होते हैं, काम होते हैं, काइंड होते हैं, कॉर्टियस होते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज इन दी पर्सनल्स दैट आर हेल्पिंग यू, ठीक है। Overall food quality. This will be the last slide that we'll be studying today. This is my third consecutive class and I'm tired now. So this is the last slide we'll be studying today. Overall food quality. We all know that store differ in quality of food they stock. That's why price भी vary करते हैं store to store. कुछ लोग अगर क्वालिटी को प्राइस से ज्यादा प्रेफर करते हैं, सम प्रेफर क्वालिटी और प्राइस, ऑब्वियसली उनके लिए फिर प्राइस मैटर नहीं करता, वो वहां पर जाते हैं, उनको फूड क्वालिटी अच्छी मिलती है। ऐसी जगह जहाँ पर फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट द पल्सेस, देयर इज नो सिंगल ड्रॉप और द मिक्सिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ द एडल्टेंट्स विद द पल्सेस, तो वो वहां जाना पसंद करेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो जो प्राइस को ज्यादा फोकस करते हैं, दे प्रेफर प्राइसेस और इकोनॉमी सेविंग मोर देन द क्वालिटी, तो वो वहां जाते हैं जहाँ पे सेम आइटम्स जो है हमें वो कम प्राइसेस में मिले। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल कि वो क्वालिटी को प्रेफर करें कि वो प्राइस को प्रेफर करें। और कुछ ऐसे स्टोर्स भी हमारे पास हैं जो कि अपने खुद के ब्रांड नेम पे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे गोरमे हर चीज अपनी खुद बना रहा था उनकी, तो वहां से कोक भी अपनी है, उनकी पेप्सी वगैरह जितनी चीजें आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलती हैं वो भी अपनी होती है उनकी बनी हुई, ठीक है। तो उनका अपना ब्रांड नेम होता है, ठीक है। तो स्टोर ब्रांड स्पेसिफिकली जब बात करें, व्हाट आर स्टोर ब्रांड्स? स्टोर ब्रांड्स होते हैं जो हाई क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और बड़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, ठीक है। ये जैसे वो ग्रोसरी स्टोर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं, खुद अपनी पैकेजिंग करते हैं, ठीक है, और ये एक्सेप्टेबल क्वालिटी पे होते हैं और लो प्राइसेस पे होते हैं, ठीक है। जैसे कि गोरमे हो गया,
वी हैव अदर स्टोर जहाँ पे यूरो स्टोर फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो उनकी पैकेट्स के ऊपर उनके अपने लेबल्स होते हैं, ठीक है। तो उनको स्टोर ब्रांड्स कहते हैं जो कि लो प्राइसेस पे कॉम्पिटिटिव क्वालिटी के लोगों के लिए अपने ही प्रोडक्ट्स या आइटम्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो एक और चीज है इसमें ही ओवर क्वालिटी में, ओपन डेटिंग। आपने कभी एक्सपायरी डेट चेक की है? यस मैम। यस मैम। अब आपसे मैं एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, लेट्स से ऐसे स्टोर्स जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, ठीक है, और एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे लोग कभी कभार जाते हैं, तो एक्सपायर्ड चीजें ज्यादा कहाँ पे पड़ी होंगी? यहाँ पे लोग कभी कभार कभी जाते कभार क्यों, कोई रीजन दे सकते हैं मुझे? क्योंकि मैम प्रोडक्ट्स किसी ने नहीं खरीदी तो वो काफी ऐसे स्थिति पड़ी वेरी होगी गुड। जब तक तो वो ऑब्वियसली खरीदी बात है, जब पुरानी नहीं जाएंगी तो टर्न ओवर कैसे हो? टर्न ओवर मतलब कि जब पुरानी हटती तो ही तो नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो जहाँ पे जितना ज्यादा टर्न ओवर रेट होता है, टर्न ओवर रेट मीन जहाँ पे इतने ज्यादा लोग जाना पसंद करते हैं, ऑब्वियसली वहां पे फूड उतना ज्यादा खरीदा जाता है और नया फूड आता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमेशा एक्सपायरी चेक करें, और जितना ज्यादा एक्सपायरी टाइम हमारे पास होता है ऑब्वियसली हम उस फूड को ज्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो जो कन्वीनियंट स्टोर होते हैं जो आपके घर के करीब होते हैं, वहां पे कभी कभार एक दो चीज लेने के लिए सिर्फ हम जाते हैं, तो वहां पे एक्सपायरी डेट जो होती है वो कम होती है, यानी कि जल्दी फूड खराब होने के चांस होते हैं एज कम्पेयर टू दी मेजर मार्केट जहाँ पे टर्न ओवर रेट यानी कि कस्टमर्स का आना जाना बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। Now, open dating is a date on food packages so that the consumer can be able to buy the freshest packages within the time period deemed to be safe for purchase. अब open dating क्या है? Open dating means that is the expiry date की हम बात करें। ये वो डेट है पैकेजेस में इसको देख के आप हमेशा कोशिश करते हैं कि सबसे फ्रेशेस्ट चीज जो है वो खरीद सके, ठीक है, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक हमारे पास जो है वो घर पे जो है वो ज्यादा टाइम तक हम लोग उसको सेफ रख सकें, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप देखें मार्केट में जब भी न्यू प्रोडक्ट आता है उसको वो पीछे रखते हैं, जो पुराने उसको आगे कर देते हैं ताकि जो पिछले वो बिक जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बैक से चीजें उठा लेते हैं, तो देखें करेंगे जो बैक से चीजें उठाएंगे उनकी एक्सपायरी डेट जो होती है वो लॉन्ग टर्म की होती है एज कम्पेयर टू द वन जो फ्रंट में पड़ी होती है। तो दिस इज व्हाट आल्सो दे डू। So these are the basic points that you have to keep in mind, ठीक है, while purchasing, while selecting a market. कि turnover rate कहाँ का ज्यादा है, what about the physical features, what about the cleanliness and the location, the safety of the parking area, parking area है भी कि नहीं है। तो all these things need to be kept in mind while selecting a market, because एक जगह हम अगर टाइम बचा रहे हैं तो दूसरी जगह हम लोग पैसा बचा रहे हैं। तो all these points के बाद at the end हमने फोकस करना है कि which is the best one while keeping all these points together, ठीक है। यस मैम। So further we have fresh produce and delicatessen bakery that we will be doing in the next class. And if you do not have any classes in the next, just keep in your mind that after that in the other week, after the Eid, we'll be having extra classes specifically for the theory. Okay, everyone, I'll end up my lecture here. If you have any queries, you can ask. मैम जी बेटा। मैम प्रैक्टिकल नोटबुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो जी, एक्चुअली पूछिए। प्रैक्टिकल नोटबुक ना ख़त्म हो गई है, तो अगर हम एक नई लेके आगे वाले प्रैक्टिकल उस पर कंटिन्यू कर लें वो ठीक रहेगा, या आप ये सजेस्ट करेंगे कि जिस पे ज़्यादा पेज है वो लेके एक ही प्रैक्टिकल नोटबुक पे कंप्लीट करें सारे? नो इश्यूज बेटा, अगर आपकी खत्म होगी नोटबुक आप दूसरी लेके बना ले, मुझे कोई इश्यूज नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, आई नीड प्रैक्टिकल वर्क टू बी कंप्लीटेड। आप उसको एक ही कॉपी पे करते हैं, दो कॉपीज पे करते हैं, तीन पे करते हैं, आप उसको पेजेस लगा के करते हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैट, आई जस्ट नीड कंप्लीट वर्क एंड इट शुड बी वेल कंप्लीटेड वर्क। यानी कि आपकी एट द एंड ऑफ द जब आपके प्रैक्टिकल्स आप लोग के एग्जाम्स होंगे तो मैं आप लोगों की प्रैक्टिकल नोटबुक्स के मार्क्स उसकी प्रेजेंटेशन पे दूंगी, बिकॉज ये मील प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का कोर्स है। तो आपकी जो नोटबुक्स होंगी प्रैक्टिकल की वेल प्रेजेंटेड नोटबुक्स होनी चाहिए
एवरीथिंग शुड बी वेल प्रेजेंटेड। जिस तरह कि आप एक खाने को प्रेजेंट करते हैं, उसी प्रेजेंटेशन पे फोकस करते हैं, तो सिमिलरली आपने अपनी नोटबुक में प्रेजेंटेशन करनी है। पिक्चर्स प्रॉपर्ली जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप घर में बना रहे हैं, उनकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके उनकी पिक्चर्स लेके वो पेस्ट करनी। ऑल द थिंग्स हैज टू बी डन देयर। जितनी अच्छी नोटबुक्स आप बनाएंगे उतनी ज्यादा मार्क्स आप ले लेंगे। दैट्स इट। और एट द एंड में एक नोटबुक सिलेक्ट करके अपने पास रखती है हमेशा। मैम फूड रेसिपीज की जो असाइनमेंट है वो ईद के नेक्स्ट मंडे करवाएंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, ईद के बाद ही होगा, जी तब नेक्स्ट तक सबमिट करवाएंगे? जी। ओके मैम, थैंक यू। एनीथिंग एल्स बेटा? I've already uploaded your lectures and practical except today's, क्योंकि अभी तक ये वीडियो जैसी मेरे पास आ जाएगी तो मैं अपलोड कर दूंगी। अदरवाइज प्रैक्टिकल भी मैंने आप लोगों का अपलोड कर दिया, वीडियो भी, तो आप वो देख सकते हैं अपने CTS में। मैम कुछ बच्चे जो वन बाय वन। मैम वो जो एक प्रैक्टिकल का आपने कहा था उसमें पेज नंबर्स आप मार्क कर देंगी, वो मार्क नहीं है। बच्चे वो स्टार्टिंग के ही थे, मैं पेज नंबर आपको वो करके तो मैं मार्क करके तो दे देती हूँ आपको, ठीक है? क्योंकि वो स्टार्टिंग की इनिशियली प्रैक्टिकल थे तो मैंने वीडियोस उनकी ऑलरेडी दी थी, मुझे लगा शायद आप लोग उसमें से देख लेंगे, क्योंकि बिल्कुल इनिशियल प्रैक्टिकल्स हैं वो, इनिशियल पेजेस पे। आप एक दफा देखें, आपको मिल जाएगा। टेस्ट इंटेंसिटी टेस्ट है और एक है हमारे पास टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। ओके मैम।